हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल प्रियसर विद्यापीठ में। हुआ कुछ इस तरह से कि जिस दिन से हमने स्टार्ट किए थे इंग्लिश के लेक्चर्स, उसी दिन 2 दिन बाद रात को मैं डीजे पार्टी में गई, इतना ज़्यादा चिल्लाया कि मेरी आवाज़ चली गई। मोस्टली बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं, अगर इनकी आवाज़ चली जाती है तो 1 वीक में वापस आ जाती है, लेकिन पता नहीं मेरे सुरों के साथ क्या हुआ कि 1 महीने बाद वापस आए। ओके, तो ऑब्वियसली इसके रिलेटेड आप मुझे एक गाना डेडिकेट कर सकते हो कि ये है, क्या हुआ तेरा वादा, वो वचन, वो इरादे। आई नो आई एम अ बैड सिंगर और मुझे बनना भी नहीं है सिंगर, बिकॉज मुझे बस इसी में आगे बढ़ना है, लेकिन सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं ये डेडिकेशन ले लूंगी। कम से कम आपने मुझे एक सॉन्ग तो डेडिकेट किया, तो दैट्स वेरी नाइस टू यू। ओके, अभी आज से मैंने एक चीज सोची है कि इंग्लिश के बारे में हम वीडियो बनाने वाले, राइट? इंग्लिश ग्रामर के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ आज से मैं गुजराती में भी बात करूंगी। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली मैं इसीलिए इंग्लिश इंप्रूवमेंट इस मतलब छोटे छोटे लोगों जो मेनली हिंदी भी नहीं बोल पाते, अगर उनको मुझे इंग्लिश सिखानी है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जितने भी लोग गुजराती में बात करे छे, राइट? હવે હું ડાયરેક્ટલી હિન્દીમાં જ ટ્રાન્સલેટ કરીને એમને શીખવાડીશ તો એ કહે છે, ભાઈ ઇંગ્લિશ તો દૂરની વાત છે, મને હિન્દી જ નથી આવડતું, તો ઇંગ્લિશનું ટ્રાન્સલેશન તું ક્યારે શીખીશ? અને અહીંયા રહેલા બધા જ લોકોને इंग्लिश શીખવું એક નીડ બની જાય છે, યા फिर અત્યારની જનરેશનમાં હું ઘણી मतलब મારા જે ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સના રિલેટિવ્સના ઘરે જાઉં છું ત્યારે એક મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ જે મને જોવા મળ્યો છે એ છે મધરહુડ। કેમ? મોસ્ટલી મધર વર્કિંગ હશે, બટ બહુ સારી 50% મધર એવી હોય છે કે વોટ એવર ધ રીઝન ઇઝ કે નથી ભણી શક્યા હોતા, બટ તેમની એવી આશા હોય છે કે એમના ચિલ્ડ્રનને બહુ સારું શીખવાડે અને ત્યારે નવું નવું ઇંગ્લિશ લર્ન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે। તમે જોઈ જશે આ વસ્તુ, કોઈના ઘરે બેટા એપલ લઈ લે, બેટા કેટ છે, આ રીતે ઇંગ્લિશમાં એને વાત કરતા હોય છે, રાઈટ? તો મારો જે આ ઇંગ્લિશના વિડીયો છે એ એટલા નોર્મલ પીપલ, એટલા ડાઉન પીપલ સુધી પહોંચે કે બધાને ઇંગ્લિશ ઇઝીલી આવડી શકે, એ મારો મોટિવ છે। તો આજથી આપણા બધા ઇંગ્લિશના વિડીયો गुजराती प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में आने वाले हैं। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का फर्स्ट वीडियो है हमारा टेंस। હવે આપણે ઇંગ્લિશની વાત કરીએ અને એમાં જો ટેન્સ જ ના વાત કરીએ તો આપણું ઇંગ્લિશ શીખવું બેકાર છે, કારણ કે ઇંગ્લિશની શરૂઆત જ ટેન્સથી થાય છે। તમારે कोई भी वस्तु रूटीन लाइफ में बोलो छो, हर रोज हम डेली लाइफ में जो भी बातें करते हैं वो हमारे एक्शन मतलब हमारे वर्क के साथ साथ वो टाइम को रिलेट करती है और उसको बोला जाता है टेंस। कहीं पे भी आप जाओगे टेंस 12 होते हैं, ये वाला टेंस, ये वाला टेंस, ये वाला टेंस, लेकिन टेंस क्या होते हैं वो तो समझाओ। जब मैं कोई भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में जाती हूँ और मैं सबको पूछती हूँ कि गिव द डेफिनेशन ऑफ टेंस, उनको पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैंने उनको पूछा कि भैया टेंसना प्रकार કેટલા છે તો ફટાફટ 12 પ્રકાર બોલી દેશે, પણ તમે હજી ખબર જ નથી કે વસ્તુનો યુઝ શું છે અને ડેફિનેશન શું છે, તેના ટાઈપ્સ જાણીને શું ફાયદો? तो you must have or you must to know about the definition of tense. Okay, look at here. A verb-based method used to indicate the time and sometimes the continuation or the completeness of an action or state in relation to the time of speaking. હવે તમે વાત કરશો મેમ હમણાં તો બોલે કે આપણે ગુજરાતીમાં, તમે ઇંગ્લિશ એટલું બધું લખ્યું છે કંઈ ખબર નહીં પડતી। ઓકે, એવું કોઈ કાર્ય તમે કામ તો કરતા હશો ને, કપડાં ધોતા હશો, ટીવી જોતા હશો, રસોઈ બનાવતા હશો, ઓફિસ પર કંઈક રાઇટિંગ કરતા હશો, રીડિંગ કરતા હશો, સ્પીક કરતા હશો, આ બધા થવા તમારા કામ। હવે એ કામ ડેડિકેટ કરે છે તમારી વસ્તુને, કઈ રીતે કે તમે એ કામ અત્યારે હાલમાં કરી રહ્યા છો, या फिर ગઈકાલે કરતા હતા, या फिर કાલે કરવાની ઈચ્છા છે, या फिर તમે બધા સોચતા હશો કે ભૂલભુલૈયા સારું છે, રિવ્યુ સારા છે, તો મે બી શાયદ કાલે હું મૂવી જોવા જઈશ। મૂવી જોવાનું તમારું થયું કામ અને કાલે જવાના છો એ તમારો થયો ટાઈમ। તો હવે તમારા કામને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ જ્યારે આપણે કનેક્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે શેની જરૂર પડે? આપણે ટેન્સની જરૂર પડે। ઓકે, चलो ये रहे हमारे 12 टेंस। जो लोग सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब आप बोलोगे थोड़ा बहुत तो याद रह जाएगा। लेकिन जो हमारे बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 वाले ग्रामर के, या फिर जो आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, चलो फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस समटाइम्स इज कॉल्ड दैट
प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस भी बोला जाता है। सेकंड, सिंपल पास्ट टेंस समटाइम्स इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस। थर्ड, सिंपल फ्यूचर टेंस समटाइम्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लिए सबने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो टेंस के सारे टाइप्स देख लिए हमने। वन बाय वन हम सारे टेंस पढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। समटाइम्स बहुत सारे लेक्चरर्स या फिर वहां पे आपके सुना होगा प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस ऑल्सो। चलो, ग्रामर्स के रूल्स के हिसाब से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जैसे डेली रूटीन में जो हम बातें करते हैं एवरीडे, ये सारे वर्ड अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ गए तो वो आपके टेंस के तौर पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म आती है उसके रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ रूटीन लाइफ के तौर पे जो हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे कैसे, किस तरह से टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके तौर पे सिखा रही हूँ। तो ध्यान से सुनना। सिंपल प्रेजेंट टेंस તમે ડેલી રૂટીનમાં જે બી કામ કરો છો તો શું કહેવાય કે હું દરરોજ રસોઈ બનાવું છું, હું દરરોજ સ્કૂલ જાઉં છું, મને 7 વાગે એટલે ચા જોઈએ જ ભાઈ, ચા વગર આપણો દિવસ ના થાય, મતલબ શરૂ ના થાય, રાઈટ? તો એવી જ રીતે જ્યારે આ સેન્ટેન્સ આપણે હિન્દીમાં બનાવતા હોઈએ ત્યારે અગર आपके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है ऐसे अगर वर्ड आए तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी आप बोले कि मैम यार खबर ना पड़ी यार, ता है, ती है, छू ना બધું શું છે ભાઈ? ओके चलो, सिंपल भाषा में मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, आया ती हूँ। वो हर रोज स्कूल जाते हैं, लास्ट में क्या ते है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोलती हूँ और अगर उसके लास्ट में ता है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, अगर ऐसा कुछ प्रनंस हो तो वो हो जाएगा मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आवड़ी जाए એટલું? આપણે આટલી બધી વેબ સિરીઝ જોતા હોઈએ, નેટફ્લિક્સ જોતા, અને આપણે હિન્દી ના આવડે એવું તો બને જ નહીં, રાઈટ? તો હું એ જ વિચારીને ચાલુ છું કે તમને બધાને હિન્દી બેસ્ટ આવડે છે, રાઈટ? ओके, तो क्या हुआ? अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है ऐसा कुछ अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वीडियो को वहां पे स्टॉप करना और अपने हिसाब से एक सेंटेंस बनाना। बनाओ, चलो काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5। अरे आराम से बन जाएगा इजीली, और बना भी दिए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो प्रॉपरली इंग्लिश को समझना चाहते हैं, उन्होंने बना दिया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही बनाया होगा मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, मैं हर रोज कॉलेज जाता हूँ, मैं हर रोज मंदिर, तो अभी आजकल में भी शायद आप जाते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन आई डोंट थिंक सो, लेकिन घर पे जो हमारा मंदिर होता है उस पर तो हम सब लोग जाते ही है, राइट? ओके चलो, जब हम टेंस की बात करें तो हमें स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कि मैं मैथ्स में भी स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर, और प्लस और माइनस की साइन से तो अभी इरिटेशन होने लगी है, कितना याद रखे भैया? लेकिन याद रखना पड़ेगा भैया आपको। क्या है? जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको यही चीज ध्यान में रखते सारे सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस 3 टाइप्स में बनाने हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इतना डिटेल में इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि ये आज हमारा फर्स्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता होगा। कल से हम जब रेगुलर 2-3 टेंस पढ़ेंगे तो आप तो थोड़े बहुत क्लेवर हो जाएंगे, तब हम थोड़ा स्पीडी जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कैसे सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस, હું હર રોજ સ્કૂલ જાઉં છું, પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ। નેગેટિવ સેન્ટેન્સ, હું ભાઈ દરરોજ સ્કૂલ નથી જાતી, કોઈક વખત આપણને હવે બોલાવે ભાઈ કે આવું જ પડશે તો આપણે જઈએ, અધરવાઇઝ આપણે સ્કૂલ જતા નથી। થર્ડ, ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ, તમે બે ફ્રેન્ડ્સ વાત કરતા કે અરે તું કાલે સ્કૂલ ગઈ હતી, that type of the sentence is called interrogative sentence.
होप सो अभी आपको तीनों का समझ में आ ही गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे बोला जाता है, नेगेटिव सेंटेंस किसे बोला जाता है एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोला जाता है। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। सेंटेंस की फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके चलो आ गया, मेरा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब भी आ गया, लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तब हमारी जो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 फॉर्म होती है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। कहां पे एस लगेगा, कहां पे ईएस लगेगा, वो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, बिकॉज अगर मैं इसमें डाल दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं हो, आप बहुत बिजी हो सब लोग, राइट? तो मैं ट्राई करूँ कि छोटे छोटे वीडियो बनाओ कि आप आराम से मतलब अपने फ्री टाइम में देख सको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस एंड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो नेगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं। जब भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हो, अगर वो सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो आपको थर्ड फॉर्म पे नॉट कंपलसरी लगा देना है। चलो હવે थर्ड फॉर्म पे नॉट કરી થાય, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, थैंक यू नॉट। कोई भी सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बनाते हो और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो थर्ड फॉर्म पे नॉट लगा ही देना है। हो गया आपका फर्स्ट, सब्जेक्ट आ गया, डू डस। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तब नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, डू डस देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले, या बिकॉज मोस्टली क्या होता है जब हम कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब जगह लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी गलती से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो ईएस था ना इसने ले लिया बेचारे ने, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले रह गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कौन से इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, डू डज हमारा आगे चला जाएगा, बाकी सब एज इट इज। डू डज आगे चला गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क करना नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करना कंपलसरी है। आ गया, ये क्या है आपका WH क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, WH क्वेश्चन। फिर मैंने आपको एज इट इज बताया था कि डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चल, एक बारी में तो किसी को याद नहीं रहता है, नोटबुक में रखना कंपलसरी है, लिखोगे तभी आप याद रख पाओगे, सेंटेंस बनाओगे रूटीन लाइफ में तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है, जब आप ग्रामर भी करते हो ना तो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं टेंस के लिए, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, अगर डेली एवरीडे कुछ सेंटेंस में आया तो समझ में आया भी है सिंपल इंडिफाइनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर वो नहीं आया तो हम क्या करते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो, या फिर उसका गुजराती ट्रांसलेशन किया, राइट? तो ऑटोमेटिकली ये बात तो आई गई ना, राइट? ग्रामर के तौर पे भी ये बात आ जाती है, स्पोकन के तौर पे भी ये बात आ जाती है, क्यों ना हम ये बात याद रखें। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की फॉर्मूला याद रह गई होगी। अभी सिर्फ एक ही बार याद रखना, अगर एक टेंस की आपने तीनों फॉर्मूला याद रखे ना तो बाकी सारे टेंस की फॉर्मूला याद रखनी चुटकी काम कमाल है। चलो याद रह गया, नेगेटिव थर्ड फॉर्म पे नॉट, इंट्रोगेटिव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चला जाएगा, डन। चलो अभी एस यस कहां लगाना था, डस कहां लगाना था, डू कहां पे लगाना था, एस यस कहां पे नहीं लगाना था, इसके रिलेटेड है ये है ही शी नेम इट। अभी आप बोलोगे कि मैम इंग्लिश तो कहीं જ નથી આવડતું, હવે ही शी नेम इट છે શું, એ છે તમારો કર્તા, કર્તા मतलब सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी नेम इट तो उसके साथ एज ये आएगा, और अगर आप नेगेटिव में लिखते हो तो डू डस आता है तो क्या आ जाएगा उसके साथ डस, राइट? आई यू वी दे, ये क्या है, ऑल्सो सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब एस ई एस उसके साथ लगेगा नहीं। समझ में आ गया होगा। अभी हम बनाएंगे उसके रिलेटेड सेंटेंसेस। सिर्फ 3 सेंटेंस यहां पे सिखाऊंगी, बाकी सेंटेंस घर पे रीड करना, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं सबको रिप्लाई दूं। चलो फर्स्ट, वह पढ़ती है, ए भणे छे, गुजराती में भी कह दूं तुमने, वह पढ़ती है। हिंदी में मैंने क्या बोला था, ता है, ती है, ते है, ऐसा अगर कुछ लास्ट में आए तो वो आ जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस। ओके चलो सेंटेंस बनाते हैं। ये दिक्कतें तो वही आती है ना कि इंग्लिश समझ में नहीं आता बनाना किस तरह से बना रहा है। वह
पढ़ती, पढ़ता है तो समझ में आ जाएगा लड़के की बात है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लड़की की बात हो रही है। तो चलो लड़की है तो शी। मैंने बोला था, क्या बोला था? अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, नेम और इट है तो उसके साथ एस एस लगेगा। पहले तो डज आएगा हमारा नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव तो ये है ही नहीं, है तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। तो क्या आ जाएगा? रीड्स। क्यों आया भैया? बिकॉज सब्जेक्ट है हमारा, ही, शी, नेम, इट है तो एस एस लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगा। अब आप बोलोगे मैम यस क्यों नहीं लगाया? उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी, उसकी वीडियो आपको कल कंपलसरी मिल जाएगी कि कहां पे एस लगेगा, कहां पे एस लगेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड, राम खेलता नहीं है, राम रमे तो नथी। राम का राम ऑलरेडी नाम दे दिया है, मैंने क्या बोला था? फिर डू या फिर डज आएगा। ओके, राम है तो डज लिख दिया। थर्ड फॉर्म पे नॉट कंपलसरी है, नॉट और खेल प्ले। यहां पे मैंने बोला था कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब उसके साथ एस एस नहीं लगता है, डजंट मैटर, यहां पे राम है फिर भी। चलो 2 हो गए। थर्ड वन में आपका लेती हूं कुछ इंट्रोगेटिव। यस, ये मोस्टली हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। क्या आप खेलते हो? क्या आप मूवी देखते हो? क्या आप बाहर जाते हो? ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बोला था? फर्स्ट मैंने डू या फिर डस, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। चलो, आप यू की बात कर रही हूं तो डू। क्यों भैया? मैंने बोला था यहां पे, क्या बोला था भैया आपने? यू है तो क्या आ जाएगा मेरा? डू। चलो डू, फिर आ गया सब्जेक्ट, और फिर मैंने बोला था कि डू डज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहां पे आ गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस एस लगाना नहीं है और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? હું આશા રાખું છું કે બધાને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને પ્રેઝન્ટ ઇનડિફાઇનાઇટ ટેન્સ બંનેમાંથી કોઈ બી જે બી તમે સમજો બહુ ઇઝીલી સમજણમાં આવી ગયો હશે। मेक श्योर आपको आज के होमवर्क के सेक्शन के लिए क्या करना है पता है? 5 सेंटेंस बनाने हैं। अगर તમે ગુજરાતી છો તો ગુજરાતી સેન્ટેન્સ અને then after ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન। અગર તમને હિન્દી સમજમાં આવે છે તો હિન્દી સેન્ટેન્સ અને એની નીચે ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન। એવા 5 સેન્ટેન્સ જેમાં 5 નહીં 6 સેન્ટેન્સ જેમાં 2 અફર્મેટિવ 2 નેગેટિવ એન્ડ 2 ઇન્ટ્રોગેટિવ। હવે એક લોજિકલી કહી દઉં, એવા જ 2 સેન્ટેન્સ, એક જે અફર્મેટિવ લો એનું જ નેગેટિવ અને એનું જ ઇન્ટરોગેટિવ, એટલે ટોટલ તમારું થયું તો એક જ સેન્ટેન્સ જેને તમે 3 સેન્ટેન્સમાં કન્વર્ટ કરશો। એવી રીતે બીજું સેન્ટેન્સ જેને अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करसो तो आपको सिर्फ 2 सेंटेंस ही बनाने हैं, लेकिन हो जाएगा कितने? 6। समझ में आ गया? ओके, चलो अभी हम हर रोज ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर रोज इंग्लिश के बारे में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।